yesterday we did elasticity. स्टार्ट किया था हमने, हुक्स लॉ किया था, उसके ग्राफ्स किए थे, and today we will be doing young modulus, and we're going to relate young modulus and its formula with Hooke's law. For example, we have a wire of metal. It has a length L, extension is E if we apply a force F, and it has an area equal to A. The terms related to this wire for its elasticity is Young modulus, stress, and strain. So first of all, what is stress? It is defined as force acting पर यूनिट एरिया. जितनी फोर्स लगाएंगे वायर के एरिया के ऊपर, उसका रेशियो जो है वो स्ट्रेस है. F over A is the formula. Newton per meter square or Pascal is a unit for stress. Strain is defined as extension per unit length. How much it extends for a unit length will be called strain. E over L. E for extension, L for length. And if they say what is Young modulus, it is defined as the ratio of stress over strain. Stress divided by strain. This ratio gives you Young modulus. Stress is force over area and strain is extension over length. We simplify. L goes for multiplication, and the final formula for Young modulus becomes F into L over E into A. So these are the three definitions related to elasticity of a wire, which can be of metal, it can be of glass, or it can be any other elastic material. Stress, force over area, strain, extension over length, and Young modulus is stress over strain. Now we'll try to find a relationship of Young modulus with Hooke's law. Young modulus says E is equal to F into L over E into A. I will make F my subject so that we have some relationship between force and extension using Young modulus. Sir, can you send these notes on the group? ये बेटा भेज दिए मैंने. ओके सर. एंड सर, कल टेस्ट कौन से सब्जेक्ट का? आई मीन कल कौन आपका से होगा, चैप्टर हाँ का? जी, कल वर्क एनर्जी पावर का होगा. ओके सर. ये चेक कीजिए, मैंने आई हैव पोस्टेड दिस ओके नोट्स सर, I'll ऑलरेडी. check them out. I'll check them out. इलास्टिसिटी, हाँ जी. वर्कशीट भी रखी हुई है इसकी, डाल दी है, और आपकी नोट्स भी दे दिए. ओके सर, थैंक यू. ठीक है. सो ई इंटू ए इंटू एल, ये बेसिकली आपके पास एक वैल्यू आ रही है जो कि हुक्स लॉ के मुताबिक स्प्रिंग कांस्टेंट होता है. अगर आप कंपेयर करेंगे दोनों लॉ, दोनों इक्वेशंस को ऑफ इन टर्म्स ऑफ एफ, यू विल फाइंड आउट that spring constant for a wire depends on E, A, and L. So we can say that spring constant is equal to EA over L. In other words, Young modulus is directly proportional to force. If you have large Young modulus, you have more spring constant and the extension will be less. So it will have less elasticity. So using the formula of Young modulus, we have derived a formula for spring constant as well for a wire, that on what factors spring constant of wire depends. It is directly proportional to Young modulus. It is directly proportional to area, and it is inversely proportional to length. More length, smaller spring constant. More Young modulus, greater spring constant. So this is how you relate them, which value will increase the spring constant and which value will decrease the spring constant.
directly proportional to area. Thicker the wire, greater spring constant, there will be less extension. So we have this relationship K is equal to EA over L. What happens if area is doubled and length is halved to the value of spring constant? सो व्हाट विल डू इज हम यहाँ पे इस फॉर्मूले को यूज करेंगे. जहां पे एल लिखा हुआ है वहां पे एल बाय टू पुट कर दे. जहां पे ए लिखा हुआ है वहां पे टू ए लिख दे. इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं. कांस्टेंट को हम लेफ्ट पे कॉमन निकाल लेंगे तो कांस्टेंट ये टू जाके ऊपर मल्टीप्लाई होगा और ये बन जाएगा 4 टाइम्स ई ए ओवर एल. ई ए ओवर एल वॉज द ओरिजिनल स्प्रिंग कांस्टेंट. So with these conditions, the spring constant is increased by 4 times. And if the spring constant is increased by 4 times, of course, extension will be reduced by 4 times. More spring constant, less extension. Okay, another example. Now area is halved and length is also halved. What happens? Again, replace the values. इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें टू जाके ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा. टू और टू cancel out kar jayega. Therefore, we get the same answer. And if we have the same answer, then spring constant is same. And if spring constant is same, we will have same extension. So you just have to make the constant common. If it cancels out, it means that the value is same. What if area is half but length is doubled? दिस टाइम ए बाय टू टू जो उसका है वो नीचे आके मल्टीप्लाई होके ये 1/4 रह जाएगा और स्प्रिंग कांस्टेंट 4 टाइम्स कम हो जाएगा. इस तरीके से आपने इसको लॉजिकली एक्सप्लेन करना होता है. जस्ट गिव मी 1 सेकेंड. नेक्स्ट, हाउ मच एनर्जी इज स्टोर्ड इन ए स्ट्रेस्ड स्ट्रिंग. अब हमने एक फोर्स लगाई है एंड देयर इज एन एक्सटेंशन ऑफ एक्स और ई फॉर दैट मैटर. हाउ मच एनर्जी स्टोर्ड? Energy is defined as force into extension, but here we are using average force because the force is not constant. So we have to find the average force that has caused this extension. Average force is always the average of two values. Initial value was 0, final value was f. So it becomes 0 plus f divided by 2 into e, which becomes half f into e. So whenever they ask you to find the value of energy stored, it is half F into E, where F is the maximum force, E is for extension. On the other hand, if you don't have the force, you have spring constant, then or the graph is given to you, then just straight away find the area under the graph. That will also give you the value of energy stored. Otherwise, just use half F into E, the formula, and you'll get the value of energy stored. On the other hand, if you have spring constant only and you don't have a force, either you can find the value of force by F equal to KE or simply replace F by KE. Your formula for energy stored becomes half KE square. So you can use half KE square for energy stored as well. If they ask you to, you can prove this as well, that half KE square is also energy stored. Here we have an example that we had applied a force F1, extension was X1. We increase the force to F2, extension is X2. And similarly, F3 has extension X3. How much work is done if the extension increases from X1 to X2? In that case, first of all, you find the work done for F1 and X1.
work for F2 and X2, and their difference will be the work done in increasing the extension. Otherwise, you just find the area of this trapezium as well. Both ways are correct. Area under the graph or W2 minus W1. If you want to increase the extension from X1 to X2, then they will ask you what is energy stored per unit length. This is total energy stored in the wire per unit length. Sorry, per unit volume, not length, per unit volume. So whatever is the volume of the wire, energy divided by volume will be energy stored per unit volume. Half F into E is your total energy divided by volume, which is A into L. Area into length of the wire is the volume of the wire. You can see here F over A is the formula for stress. E over L is the formula for strain. So this formula becomes half stress into strain. वो आपसे पूछ सकते हैं कि what is the formula for energy stored per unit wire per unit volume. तो आपने हाफ स्ट्रेस इनटू स्ट्रेन को जो है वो डिराइव भी करना चाहिए, आपको आना चाहिए, और सेकेंडली आपको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए बिकॉज आपने आइडेंटिफाई करना है कि व्हाट इज द वैल्यू फॉर वर्क डन या एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम. This is just an experimental procedure. जनरली वो इतना क्वेश्चन पूछता नहीं है, बट यू शुड नो कि किसी भी वायर का यंग मॉडुलस एक्सपेरिमेंटली किस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है. इसमें मेन चीज समझने की सिर्फ इतनी है कि ये हमारे पास एक वर्नियर स्केल है, इसको हम यूज करेंगे टू डिटरमिन द वैल्यू ऑफ एक्सटेंशन. बहुत टेक्निकल डिटेल में हम नहीं जाएंगे, हमने सिर्फ ये कह रहा है जी हमने वर्नियर स्केल को यूज किया है टू इसका फाइंड. स्प्रिंग है? ये स्प्रिंग नहीं है बेटा, दिस इज अ वायर. इसके नो, साथ हम वर्नियर स्केल के अंदर स्प्रिंग लगा होता है एक्सटेंशन के लिए? वर्नियर स्केल इज लाइक अ वर्नियर कैलिपर. अच्छा, उसके ओके सर. उसके ऊपर उसके ऊपर एक मेन स्केल होगा, उसके ऊपर एक वर्नियर स्केल होगा. उन दोनों को यूज करके आप एक्सटेंशन या लेंथ को डिटरमिन करते हैं. ये वही वही वर्नियर कैलिपर्स हैं जो आपने लेंथ मेजरमेंट के लिए इस्तेमाल किए थे. दिस इज नॉट ओके स्प्रिंग, सर. दीज आर टू स्केल्स. इनकी मूवमेंट आपको बताएगी कितनी एक्सटेंशन बढ़ गई है. इसका यूसेज आपको आना जरूरी नहीं है, सिर्फ आपने ये कहना है कि हमने स्केल को यूज किया है टू फाइंड द एक्सटेंशन. यूसेज इज नॉट इन योर सिलेबस. यंग मॉडुलस होता है एफ इंटू एल ई इंटू ए. तो लेंथ ऑफ द वायर हमने दो यूज की है, एक हमने की है जो जो कि हमारी एक्चुअल वायर है, ये वाली. इसके साथ एक वर्नियर स्केल आपने अटैच किया हुआ है, और दूसरी वायर के साथ उसका मेन स्केल है, और इसको हमने एक लोड से लटकाया हुआ है ताकि ये स्ट्रेट रहे. और जो आपकी अपनी वायर, ये दूसरी वाली नंबर 2 वायर जो है, ये आप इस पर फोर्स बढ़ाते जाएंगे. आई हैव अटैच्ड अ हैंगर. इसमें वेट मैं डालता जाऊंगा तो एक्सटेंशन बढ़ती जाएगी. हमने बेसिकली फोर्स और एक्सटेंशन को डिटरमिन करना है. लेंथ के लिए हम रूलर इस्तेमाल करेंगे. ये वायर की लेंथ कितनी है. एरिया के लिए हम डायमीटर द वायर कैलकुलेट करेंगे यूजिंग अ माइक्रोमीटर, और फिर ए इज इक्वल टू पाई डी स्क्वायर बाय 4 कर लेंगे. वी विल कीप ऑन चेंजिंग द वेट ऑन द वायर सेल्फ, और फिर हम उसके एक्सटेंशन को डिटरमिन करेंगे यूजिंग द वर्नियर स्केल. बस इतना ही आपने लिखना कि जी हमने वर्नियर स्केल के जरिए एक्सटेंशन डिटरमिन की है, बिकॉज वो यहां से जितनी लेंथ बढ़ती जाएगी उतनी एक्सटेंशन बढ़ती जाएगी. फिर हम ग्राफ प्लॉट करेंगे फोर्स और एक्सटेंशन का, एफ और ई का ग्राफ. इसका ग्रेडियंट निकालेंगे.
एल हमें मालूम हो गया है बाय रूलर, ए हमें मालूम हो गया है बाय माइक्रोमीटर, एफ ओवर ई का जो एवरेज वैल्यू है वो ग्रेडियंट से हमने निकाल ली है। इन सब को मल्टीप्लाई कर ले एंड यू विल गेट द वैल्यू ऑफ यंग मॉडुलस। इस तरह एक्सपेरिमेंटली आप यंग मॉडुलस डिटर्मिन कर सकते हैं। जनरली जो है वो इस तरह डिटेल में क्वेश्चन नहीं आता, मगर आपको आइडिया होना चाहिए कि यंग मॉडुलस जो है वो किस तरह कैलकुलेट किया जाएगा किसी भी वायर का जो मेटल की बनी हुई है, या ग्लास की भी हो सकती है फॉर दैट मैटर। अब इसका हम ग्राफ प्लॉट करेंगे फोर्स और एक्सटेंशन का, और हम इसको फोर्स को बढ़ाते ही चले जाएंगे यहां तक कि वायर ब्रेक ना करे। तो जब हम ग्राफ प्लॉट करते हैं तो देर आर सर्टन फीचर्स विच वी विल आइडेंटिफाई ऑन द ग्राफ। पहले तो स्ट्रेट लाइन होगी, इट इज ओबेइंग हुक्स लॉ। फिर ये कर्व करेगा, कर्व करता जाएगा, फिर एक सर्टेन लेवल तक जाएगा, फिर उसके बाद एकदम से आपकी फोर्स बढ़ना शुरू हो जाएगी, एक्सटेंशन कम होगी, इट विल गो टू अ मैक्सिमम हाइट, और फिर वहां से एकदम से डिप आएगा और इस पॉइंट पे ये ब्रेक कर जाएगा। ए इज योर लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, यहां तक ये हुक्स लॉ को ओबे करता है। एल इज योर लिमिट ऑफ इलास्टिसिटी, यहां तक ये मटेरियल इलास्टिक है। अभी जो मैंने वर्टिकल लाइन ड्रॉ की है, इसके लेफ्ट साइड का जो एरिया शो कर रहा है, या जो लेफ्ट साइड पे जो रीजन बन रहा है ग्राफ का, इट इज इलास्टिक डिफॉर्मेशन। आप लोड कम करेंगे, एक्सटेंशन जीरो हो जाएगी। ऑन द राइट हैंड साइड का जो ग्राफ का पोर्शन बच रहा है, इट इज प्लास्टिक डिफॉर्मेशन। प्लास्टिक डिफॉर्मेशन का मतलब ये होता है कि अगर आप लोड कम करेंगे तब भी उसके अंदर टोटल लेंथ वापस नहीं आएगी, देयर विल बी परमानेंट एक्सटेंशन। यील्ड पॉइंट, कोई भी पॉइंट यहां पे लेंगे उसको यील्ड पॉइंट कहते हैं। यील्ड पॉइंट का मतलब ये होता है कि इसके अंदर परमानेंट एक्सटेंशन या डिफॉर्मेशन हो चुकी है। सर फोर्स हमने खुद इंक्रीज की है बाई के बाद? हम लोड बेटा बढ़ाते जा रहे हैं, एक्सटेंशन बढ़ती जा ओ, रही है। ओके सर। अब अगर आप वाई से वापस जाएंगे तो वाई से वापस ओ तक नहीं पहुंचेंगे, बल्कि आपने एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है। जहां पे वो एक्स एक्सिस को कट करेगी वो लेंथ आपको परमानेंट एक्सटेंशन शो कर रही होगी। फिर आपके पास आएगा अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ, यानी कि हाईएस्ट पॉइंट जहां पे फोर्स आपने अप्लाई की है उसको अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ कहेंगे। मैक्सिमम फोर्स जो वायर बर्दाश्त कर सकती है, उसके बाद अचानक वो वायर टूट जाएगी। तो इस तरह का ग्राफ हमें आमतौर पे मिलता है जब भी हम फोर्स और एक्सटेंशन या स्ट्रेस और स्ट्रेन का ग्राफ प्लॉट करते हैं। इधर इसको स्केच कर लीजिएगा। तो मेनली आपने ये चीजें आइडेंटिफाई करनी है। इनके नाम मालूम होना चाहिए, इनकी पोजीशंस मालूम होनी चाहिए कि ये ए कहाँ पे है, एल कहाँ पे है, वाई कहाँ पे है, सी कहाँ पे है, डी कहाँ पे है, इलास्टिक डिफॉर्मेशन कहाँ पे होती है, प्लास्टिक डिफॉर्मेशन कहाँ पे होती है। सिमिलर हेयर, A is limit of proportionality, wire obeys Hooke's law, L is limit of elasticity, the wire is elastic, point does not, but it does not obey Hooke's law, यानी कि A से लेके L तक इलास्टिक जरूर है वो, मगर वो हुक्स लॉ ओबे नहीं करता। यील्ड पॉइंट में क्या होता है, प्लास्टिक डिफॉर्मेशन स्टार्ट करती है बियॉन्ड एल, एंड व्हेन डिफॉर्मिंग फोर्स इज रिमूव देयर इज परमानेंट डिफॉर्मेशन, यानी कि एल से ऑनवर्ड जो है ये डिफॉर्मेशन स्टार्ट होती है प्लास्टिक, इससे ऑनवर्ड सारा प्लास्टिक फॉर्मेशन हो रही है, मगर वाई तक तो परमानेंट हो चुकी होती है। ओ बी, जब आप वाई से वापस आएंगे तो दैट इज योर परमानेंट डिफॉर्मेशन, परमानेंट एक्सटेंशन। सी इज कॉल्ड अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेस, मैक्सिमम फोर्स जो ये सस्टेन कर सकती है,
उसके बाद वायर जो है वो एक्सटेंड कर रही होती है और उसकी जो थिकनेस है वो वेरी कर रही होती है. देयर आर अनइवन फॉर्मिंग नेक्स एट डिफरेंट पोजिशंस एंड फाइनली इट ब्रेक्स at point D. So this is the general behavior of the wire which is under a stress or under a force. इसको भी कॉपी कर लीजिएगा. ओके जी. अब ये हमारा जो ग्राफ है, दिस इज अ ग्राफ ऑफ अ मेटल वायर. और मेटल वायर का ये बिहेवियर जो है ये तमाम मेटल वायर्स पे अप्लाई होगा. इसमें इलास्टिक रीजन भी होगा, प्लास्टिक रीजन भी होगा. ए is your proportionality, limit of proportionality. B is your limit of elasticity. C जो है ये लोअर यील्ड पॉइंट है. इससे ऑनवर्ड फिर जो है वो हमारे पास वो डिफॉर्मेशन स्टार्ट हो जाती है. D इज द ब्रेकिंग स्ट्रेस और E जो है वो फ्रैक्चर पॉइंट है. अब जितने भी क्रिस्टलाइन मटेरियल है उनका बिहेवियर क्या होगा? उसके बिहेवियर का नाम है डक्टाइल. क्रिस्टलाइन मटेरियल कौन से होते हैं? जितने भी मेटल्स हैं वो तमाम मेटल जो है वो क्रिस्टलाइन मटेरियल होते हैं. जो अभी हमने ग्राफ प्लॉट किया था ये तमाम क्रिस्टलाइन मटेरियल का ही ग्राफ है. लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, लिमिट ऑफ इलास्टिसिटी, यील्ड पॉइंट एंड सो ऑन. आप यील्ड पॉइंट से आगे चले जाते हैं अगर और उसको अनलोड करते हैं तो देयर विल बी परमानेंट एक्सटेंशन. तो इस तरह का जो बिहेवियर है ये हमारे क्रिस्टलाइन मटेरियल्स का बिहेवियर है. और सब बिहेवियर जो है उसको हम डक्टाइल बिहेवियर कहते हैं, जिसके अंदर इलास्टिक डिफॉर्मेशन भी होती है और प्लास्टिक डिफॉर्मेशन भी होती है. और इसकी वजह यह है कि ये मटेरियल्स के अंदर लॉन्ग रेंज एटॉमिक स्ट्रक्चर्स एग्जिस्ट करते हैं. दे हैव लॉन्ग रेंज एटॉमिक स्ट्रक्चर्स. दूसरे टाइप ऑफ मटेरियल जो है उसका नाम है एमॉर्फस. और इनका बिहेवियर जो है वो ब्रिटल है. इसका अगर मैं ग्राफ प्लॉट करूं इट विल ऑल्सो बी अ स्ट्रेट लाइन बट इट ब्रेक्स. नो प्लास्टिक डिफॉर्मेशन. और सबसे कॉमन एग्जांपल जो है वो ग्लास है. ग्लास इज अ ब्रिटल मटेरियल और हैज अ ब्रिटल बिहेवियर और इट इज एमॉर्फस मटेरियल. ओनली इलास्टिक डिफॉर्मेशन एंड नो प्लास्टिक डिफॉर्मेशन, इसीलिए ये ब्रेक कर जाता है. इट इज अ सुपर कूल लिक्विड with short range structures, but it obeys Hooke's law. ये हुक्स लॉ ओबे करता है. तो ये थोड़ा सा आपको इसकी देखकर ग्राफ को देखकर आपको ये बताना पड़ेगा कि कौन सा मटेरियल है, इसका बिहेवियर कैसा है और सेकेंडली इसके अंदर कौन कौन से मटेरियल्स आते हैं. जैसे कि क्रिस्टलाइन मटेरियल इज कॉपर, स्टील, मेटल वायर्स को हम क्रिस्टलाइन मटेरियल कहते हैं. और एमॉर्फस में वी हैव ग्लास. यू मस्ट बी एबल टू आइडेंटिफाई देम बाय लुकिंग एट द ग्राफ्स और फिर उनको आपको एक्सप्लेन भी करना है. तो ये दो मटेरियल हो गए, क्रिस्टलाइन एंड अमॉर्फस. तीसरा मटेरियल जो हम डिस्कस करेंगे वो है रबर. अब इसमें नोट कीजिएगा इसका जो ग्राफ, ये जो ऊपर वाली लाइन है ये लोडिंग है. फोर्स बढ़ाएंगे तो उसका एक खास बिहेवियर होगा और जब आप अनलोड करेंगे तो वो किसी और पाथ से वापस ओरिजिन में आएगी. इट इज इलास्टिक मगर ये ओबे हुक्स लॉ नहीं कर रही. इसको कहते हैं पॉलीमर्स. ये पॉलीमर्स की चेन्स आपस में एंटेंगल करके बनाया जाता है और इसके अंदर इलास्टिसिटी होती है. और इसको अगर आप चाहते हैं और स्ट्रांग हो तो सल्फर मॉलिक्यूल्स की चेन्स इसके अंदर ऐड की जाती है. वो बहुत डिटेल में इसको नहीं हम जाएंगे. जस्ट फॉर योर आइडिया ये बता रहा हूं मैं कि दे आर मेड अप ऑफ पॉलीमर्स ऑफ रबर चेन्स
उनके दरमियान में सल्फर ऐड किया जाता है, जिससे वो और स्ट्रांग हो जाता है। इस ग्राफ को हम स्टेरेसिस कर्व कहते हैं, मगर मटेरियल स्ट्रेट लाइन नहीं है। इट इज इलास्टिक बट इट इज नॉट अ स्ट्रेट लाइन, सो इट डज नॉट ओबे हुक्स लॉ। इलास्टिक जरूर है, मगर ये हुक्स लॉ ओबे नहीं करता। अगर आप टोटल एरिया निकाल लें, यानी कि जो हमारे पास जो ऊपर वाला ग्राफ है, उस ग्राफ के नीचे जितना भी एरिया आता है, ये पर्पल और ग्रीन दोनों एरियाज को ऐड करें, दैट विल बी योर टोटल वर्क डन इन स्ट्रेचिंग ऑफ द वायर। दोनों एरियाज, पर्पल एंड ब्लैक एंड ग्रीन, होल एरिया। तो सर अगर हम ओवरऑल पर्पल का ले रहे तो ग्रीन उसमें ही एड इंक्लूडेड नहीं होगा? ये सिर्फ पर्पल सी ये शेड दरमियान का एरिया है। बट सर निकालते हुए तो पर्पल का टोटल ही आ जाएगा ना हमारा, नहीं, आप फ्रॉम द इसकी जगह बेस। फ्रॉम द बेस थोड़ी निकालेंगे आपने, तो ये जो शेडेड एरिया ये निकालेंगे ना सिर्फ। ठीक है सर। यानी जो शेड हुआ है वो एरिया निकालेंगे ना, प्रॉफिट एवरेज उसका वो यही वैल्यू बनेगी ना, जो दरमियान का एरिया बन रहा है। यस सर। इसको और प्लस नीचे वाला, दोनों को ऐड करेंगे, तब ओके आपके पास सर। टोटल वर्क डन आएगी। और अगर सिर्फ ग्रीन निकालें तो फिर क्या आएगा? दैट इज एनर्जी रिकवर्ड इन अनलोडिंग। यानी कि स्प्रिंग को आप जब खींच रहे हैं तो ये सारा वर्क हो रहा है, जब आप रिटर्न करेंगे तो सिर्फ नीचे ग्रीन वाला एरिया जो निकलेगा, वो आपको वापस एनर्जी मिल रही है। तो बाकी एनर्जी कहाँ गई? वो इस सिस्टम के अंदर ही रह जाती है। रबर बैंड अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है कुछ एनर्जी एज इंटरनल एनर्जी, जब आपको स्ट्रेच उसको करते हैं और उसको अनस्ट्रेच करते हैं, तो सारी एनर्जी रिकवर नहीं होती। उसका कुछ पोर्शन जो यहाँ पे पर्पल नजर आ रहा है, ये वो रीजन है जो आप एब्जॉर्ब कर जाता है मटेरियल इटसेल्फ। तो रबर बैंड को अगर बहुत दफ़ा आप स्ट्रेच करेंगे और फिर उसके ऊपर फिर फोर्स निकाल देंगे, तो वो रबर बैंड गर्म हो जाता है, बिकॉज इट इज एब्जॉर्बिंग एनर्जी, पार्ट ऑफ द एनर्जी, नॉट होल, पार्ट ऑफ द एनर्जी। जिस तरह रबर की गाड़ी के टायर होते हैं, जब आप लॉन्ग रूट पे जाते हैं तो टायर गर्म हो जाता है, वो फ्रिक्शन से नहीं हो रहा होता, वो स्ट्रेचिंग और अनस्ट्रेचिंग से हो रहा होता है। और कुछ ना कुछ एनर्जी हर दफ़ा स्ट्रेचिंग और अनस्ट्रेचिंग से उसके अंदर रह जाती है। तो ये कॉन्सेप्ट जो है, इसको हम रबर के केस में अप्लाई करेंगे, उसको कहते हैं हिस्टेरिसिस कर्व। तीन पार्ट में डिवाइड करते हैं, पर्पल, ग्रीन एंड पर्पल एंड ग्रीन। इनको हम सेपरेटली इसको हम डील करेंगे। तो दिस कंप्लीट्स द चैप्टर। इंशाल्लाह मंडे को जो है वील बी डूइंग क्वेश्चंस, सो मेक श्योर दैट ऑल ऑफ यू हैव योर वर्कशीट विद यू, सो दैट जब हम इसको सॉल्व करें तो आपके पास रिटर्न फॉर्म में हो, और साथ साथ उसको फिलअप कर लें या उसके एटलीस्ट पिक्चर खींच के बाद में उसमें इसको कवर कर लेंगे। ठीक है।